আরেকটা ভিডিও স্টার্ট করছি। যখন কিনা একটু দাঁড়াও, আমি আমার এখন যেটা বলবো, in boat and stream এর নিউমেরিক্যালস as well as থিওরি দুটো করতেই এই কনসেপ্টটা কাজে লাগে। সেটা হচ্ছে কিরকম না, দেখবে ধরো সাপোজ এটা আমি হিন্দিতে বলছি, তাহলে তোমরা বুঝতে সুবিধা হবে। অল অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হিন্দি অর নট? এখানে যারা আছো, রাইমা, দইপায়ন, রশনি, কৃতিকা, और Aparna, Shoutik. Please response. All of you, are you able to understand Hindi? Okay. See, whenever, suppose these are the two banks of a river. Banks of a river मतलब एक पार से इस पार से उस पार की तरफ तुम बोट को लेकर रिवर क्रॉस कर रहे हो. You are crossing a river. Okay. So this is river. And through boat you are crossing the river. Now, suppose obviously in the river there is a direction of the stream of the river. नदी एक जगह से दूसरे जगह की तरफ फ्लो होता है. ये सब ना, कभी भी किसी रिवर को देखे हो कि वो एकदम शांत है? कभी भी नहीं होता. इसका आना जाना या तो इधर से इधर या तो इधर से इधर. It moves. Okay. So listen. Whenever you are crossing a river, you have, if you noticed, then you can see, suppose you are crossing a river through a boat and your starting point is this and your destination is this, and river is flowing from left to right. Suppose left to right, this is left direction and right direction. The boat will not start from this to this in this direction. If your destination is this point and starting is this, and the river is flowing from this direction to this direction, the boatman will not move in this direction, or it will not start its journey towards its destination. Okay? It will rather start in this direction. Are you able to understand? Why it will happen, I will make understand. Yes or no? All of you please reply. ये क्यों होता है? जानते हो कोई? बोलो. Any one of you know this? ये क्यों होता है? এটা কেন হয়? बोलो. दिगंत तो कुछ बोल रहे थे, बोलो. Suppose you are starting from this point and your destination is this point. You have to reach second point from one. It is एकदम perpendicular है, सीधा है. So the boatman starting from this point and it is S and it is D for destination will not move in direct. इस तरह नहीं जाएगा. The boatman will not move in this direction. It will rather start in this direction. Why? To reach this point from this point, which is directly opposite, it will start, or it will move, or it will start its journey in this direction, so that it can reach in this direction. ये इस तरह जाएगा तो ही इधर पहुंचेगा. अगर ये सीधा जाएगा तो ये इधर नहीं पहुंचेगा. It will reach rather some points in the right side if the river is flowing from left to right. बोलो. Yes, river এর flow এর জন্য হচ্ছে. আর কেউ আরো ডিটেইলে? Any one of you? See, the boatman velocity, if the boat velocity we represent as Vp, that is the velocity of the boat, and the stream velocity, if we denote the stream velocity as Vs, I mean, it's 113 question, 113 question. You can see also river, Vr is the velocity of the river. So if the river is flowing in this direction, so see, there are two velocities.
one is the velocity of the boat in this direction. Suppose the boatman is not starting in this direction. Boatman is supposed starting in this direction straight, and river is flowing in this direction. So boat के ऊपर, तो बोट के ऊपर दो वेलोसिटी रहेगा। एक तो इसका खुद का वेलोसिटी vb, और बोट किसके ऊपर है? रिवर के ऊपर है। तो रिवर का वेलोसिटी किधर है? इधर है, vr, एंड दिस इज vb। सो देखो दो वेलोसिटीज रहेगा, एक है इधर vb और एक है इधर vr। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? एट द पॉइंट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर vb और vr के जंक्शन जहां पर है, यहाँ से अगर एक डायगोनल तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। सपोज दिस इज v, ये सब नो। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी कब होता है? जब दो वेलोसिटी, जैसे कि रेन, इन केस ऑफ रेन, जब ऊपर से रेनफॉल हो रहा था तो छतरी को, अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ना पड़ रहा था, याद है? इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। जो 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 कोई, सपोज कोई मैं आदमी पैदल चल रहा था इस तरह और ऊपर से रेन आ रहा था, तो इनको तुम्हें छतरी को ऐसे पकड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि रेन इस तरह से आ रहा था, रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ से रेन आ रहा था, याद है? ये सब ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इन दिस डायरेक्शन, रिवर इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये बोट तो रिवर के ऊपर ही है ना, तो ये बोट किस तरह जाएगा? इन विच डायरेक्शन अल्टीमेटली द बोट विल मूव? देयर आर टू वेलोसिटीज vb एंड vr। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ हो रहा है? डायगोनल की तरफ से इस तरह होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट ऑन द रिवर। तो द बोट अल्टीमेटली विल द मूव along the direction of the resultant velocity। सो अगर बोट इस तरह जाएगा, vb इस तरह, और रिवर लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह हो रहा है, तो बोट अगर इस तरह स्टार्ट करेगा vb, तो बोट किस दिशा में जाएगा? द बोट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ये सब नो, प्लीज रिप्लाई। Because this will be the resultant velocity, and suppose the boat will reach रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ ही तो अल्टीमेटली बॉडी का मूवमेंट होता है। ये सब नो, जब कोई भी बॉडी के ऊपर दो वेलोसिटीज रहता है या फिर दो फोर्स रहता है, जो भी रहे, तो अल्टीमेटली द बॉडी विल मूव इन व्हिच डायरेक्शन? दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट, दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट जिस दिशा में होगा उसी दिशा में वो बोट मूव करेगा। बिकॉज ये बोट तो रिवर के ऊपर है ना, तो बोट के ऊपर दो दो वेलोसिटी काम करेगा। एक तो इसका खुद का वेलोसिटी vb, और एक ये रिवर के ऊपर है तो रिवर का वेलोसिटी भी काम में आएगा। जैसे कि तुम अगर रिवर के जो स्ट्रीम का वेलोसिटी है उसी तरफ अगर तुम मतलब क्या स्विमिंग करोगे तो क्या होगा? If you are swimming in the direction of the river, so there your velocity will add up, है कि ना? तो अगर तुम कुछ भी ना करो, तुम अगर स्ट्रीम के ऊपर अपने शरीर को सिर्फ पानी के ऊपर रख दिया है स्विमिंग के माध्यम से, तुम्हारा वेलोसिटी जीरो है, तो तुम्हारा बॉडी तब मूव करेगा कि नहीं? बोलो ये सब नो। वो स्ट्रीम का वेलोसिटी, वो लहरी तुम्हें ले जाएगा, नदी का भाव ही तो तुम्हें ले जाएगा बहा के। ये सब नो। सपोज ये जो जैसे कुछ दिन पहले अनफॉर्चुनेटली एक जगह पर हुआ है, जलपाईगुड़ी में, देखा था? दशहरा का मौसम में हुआ था एक एक्सीडेंट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वहां पर जो नदी का भाव था, लहर था, वो लोगों को क्या बोलते हैं उसको, बहला कर ले गए, बह गया लोग, जो आदमी लोग बह गया वो पानी में, अपने आप को सेव नहीं कर पाए। तो देखो यहाँ पर अगर ये बोट है, बोट सपोज बोट का खुद का कोई वेलोसिटी नहीं है, बोट सिर्फ यहाँ पर रख दो। जैसे कि जब पानी होता है घर में, बहुत बारिश होता है, तुम एक पेपर का बोट बनाकर रास्ते में जब पानी आता है उसमें छोड़ देते हो, तो बोट चलता है कि नहीं? बोलो चलता है। किस कौन सा वेलोसिटी में चलता है? वो पानी का वेलोसिटी में बह जाता है। तो सपोज बोट को तुम खुद रख दिया है, बोटमैन उसको नहीं चला रहा है, तब भी बोट चलेगा। कौन सी दिशा में चलेगा? इस दिशा में चलेगा। नदी का भाव उसको ले जाएगा इधर, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी इस दिशा में है। अभी क्या है ना, उसको कुछ जगह पे जाना है, उसको इस पार जाना है, बोट को इस पार जाना है, तो बोट क्या करेगा? सपोज ये सीधा ऐसे स्टार्ट किया, तो ये किधर जाएगा? दो वेलोसिटी है, vb बोट का वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी, ये डायगोनल रिजल्टेंट इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। तो ये यहाँ पर अगर इधर जाएगा, इसका बोट का वेलोसिटी इधर है, रिवर का इधर है, तो ये अल्टीमेटली रिजल्टेंट इधर होगा, तो ये कहां पर पहुंचेगा? बोट इधर पहुंचेगा।
क्योंकि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो रहा है, so it will reach in this direction. ये कब होगा ना, जब बोट सीधा स्टार्ट करेगा, बोट का वेलोसिटी अगर इधर होगा तो इधर जाएगा। दैट्स व्हाई अभी देखो, अगर इसको इस पॉइंट में जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन से स्टार्ट करके सीधा इधर जाना है, तब क्या करना पड़ेगा बोटमैन को, ये जो बोटमैन होता है ये तो जानते हैं हमें इधर पहुंचना है, तब इसे क्या करेगा, द बोट विल स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन, VB will be in this direction, तो VB is in this direction and VR is who? VR कब होगा, VR is in this direction, VR मतलब रिवर का वेलोसिटी इस दिशा में है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कब होगा, दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल बराबर होगा, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसीलिए अगर इसको सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट पॉइंट तक पहुंचना है तो बोट टेढ़ा करके इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में स्टार्ट करेगा, अगर इस दिशा में जाएगा तभी क्या होगा, उसी केस में इन दोनों का रिजल्टेंट इधर इस दिशा में होगा, क्योंकि बोल्ट अल्टीमेटली कौन सी दिशा में जाएगा, अल्टीमेटली दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ही it will travel boat will travel in the direction of the resultant velocity, so the boat, that's why boat starts in this direction, so that the resultant is in this direction, so that it can reach ultimately opposite direction. So very importantly see, इस दिशा में क्या होगा, द बोट विल ट्रेवल, वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिमम डिस्टेंस। वाई मिनिमम डिस्टेंस, देखो सपोज दिस इज द रिवर, अगर बोट इस दिशा में जाता, इस दिशा में अगर वी होता, ये स्टार्ट अगर जाता, स्टार्ट अगर ऐसे होता और वी अगर ऐसे है, तो ये बोट कैसे जाता है, यहाँ पर जाता, तो बोट यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सपोज ये नहीं किया, स्ट्रेट किया, तो इधर जाता, सपोज ये 3 नंबर पॉइंट है, तो बोट ऐसे यहाँ पर रीच करता, ये सब नो, ये सब नो, तो देखो मिनिमम डिस्टेंस नदी के दो पार के बीच मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, सपोज दिस इज अ रिवर, सपोज यस परपेंडिकुलर, सो सपोज दिस इज 2 किलोमीटर, इसका थिकनेस 2 किलोमीटर, तो दिस विल बी 2 किलोमीटर, अगर ये ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज मोर देन 2 किलोमीटर होगा, ये सब नो, देखो इट इज द मिनिमम, अगर ये होगा तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2 किलोमीटर, लेट इट बी 4 किलोमीटर, ये सब नो। तो जब भी तुम बोट में जाओगे मिनिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल करोगे, इफ योर पाथ ऑफ ट्रेवलिंग और योर यस पाथ ऑफ क्रॉसिंग, अगर पाथ अगर ऐसा होगा तो इट विल बी मिनिमम डिस्टेंस, अगर तुम मतलब इधर जाओगे तब भी ना तुम इधर ऐसे, if you are moving in this direction, starting in this direction, that then only you will cross in this direction, your path will be in this direction, so this is the case when the minimum distance you cover, if you start in this direction then your path will be in this direction, yes or no, path of traveling will be in this direction, in that case it will be not minimum, it will be more than minimum, because minimum if you cross the perpendicular distance, understand, yes or no, ये क्या है पहला कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड all of you, please reply. सेकेंड थिंग, अभी देखो, अभी इसको माध्यम से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। सपोज द बोटमैन पहला कॉन्सेप्ट, बोटमैन मिनिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, जब ये टेढ़ा इस दिशा में जाएगा तभी वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सब नो क्लियर, बिकॉज नाउ सपोज द बोटमैन इज, इसको ध्यान से देखो, सीधा जा रहा है, इट इज स्टार्टिंग द परपेंडिकुलर, स्टार्टिंग इट्स जर्नी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन इट्स पाथ ऑफ ट्रेवलिंग विल बी इन दिस डायरेक्शन, तब ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। अभी ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर रीच किया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर एक से स्टार्ट करके 3 से, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड रीचेस इन द पॉइंट 3,
What is the perpendicular distance traveled by this body? Bolo. It starts from 1 and 3. Suppose this distance, the thickness of the river. Thickness of the river means दोनों पहाड़ के भीतर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है. सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल बी. एल एल इज द थिकनेस ऑफ द रिवर. जैसे कि हमने तुम लोगों को जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था क्लास 11 में, जैसे रोशनी जानते हो, प्रोजेक्टाइल में एक था ना परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस. याद है रोशनी? So vertical distance is traveled by the vertical velocity. Yes or no? In case of horizontal projectile motion का न्यूमेरिकल्स भी हम दे देंगे, थियोरेटिकल वीडियोस भी हम दिए हैं. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. तो यहाँ पर भी देखो, बोट एक नंबर से स्टार्ट किया, 3 नंबर पे रीच किया. आफ्टर स्टार्टिंग 1 इट रीचेस 3. सो बिटवीन एक से स्टार्ट करने के बाद जब वो 3 नंबर पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे, तब आफ्टर रीचिंग द 3 पॉइंट, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट? इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल ही हुआ. ये सब ना बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट. एक नंबर पॉइंट कैमरा में नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. एक यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुंचा, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इस पिक्चर का देखो. परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ L, the thickness of the river. Or if you consider this displacement as a horizontal displacement, suppose we are considering this displacement as a horizontal displacement. So horizontal displacement, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं 1 और 2 और 3 के भीतर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं सपोज x. So what is एक से लेकर 3 तक, you are starting 8 and you are reaching 3. So इन दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x. क्योंकि तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? x. ये सब ना समझ में आया सबको? ये सब ना रिप्लाई दो. नाउ सपोज अभी इस मामले में चले जाओ. तुम यहाँ से इस मामले में देखो, इधर से तुम 1 से स्टार्ट किया, 2 नंबर में पहुंच गए, तो तेरा बोट को क्या पहले ही समझा दिया था हमने, इस बोट को 13 तरह इस दिशा में जाना पड़ेगा तब ये यहाँ पर पहुंचेगा. तो इस मामले में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बोलो? अगर इसका थिकनेस, रिवर का थिकनेस एल है, सेम है, तो इस मामले में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट when the boat starts from 1 and reaches 2, एक से 2 तरफ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एल ही होगा. यस और नो? क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई. जब ये इस तरफ जाएगा, 2 नंबर पे पहुंच गया, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों के बीच क्या है? एल ही है. और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है क्या? एक से स्टार्ट करके 2 पर सीधा पहुंच गया परपेंडिकुलर, तो 2 पॉइंट और 1 पॉइंट के भीतर हॉरिजॉन्टल कोई डिस्टेंस है? नहीं है. सो दैट इज x इज इक्वल टू 0. यस और नो? इस 2 नंबर इस केस में, इस पिक्चर में. यस और नो बोलो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम वहां पर आ चुका है पार्ट.
हाँ बोलो दिगंत। হ্যাঁ একা কিসের মধ্যে? হ্যাঁ বলো, জোরে বলো জোরে বলো জোরে বলো। हाँ बोलो दिगंत। हाँ तो इस मामले में देखो दो और तीन ये दो पिक्चर है, दोनों पिक्चर के लिए हम अलग अलग से हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो इस मामले में देखो अगर यहाँ से जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट डेल ही हुआ, इस दिशा में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट डेल हुआ और हॉरिजॉन्टल एक्स हुआ। अब यहाँ पे देखो एक से स्टार्ट के दो पे पहुंच गया तो दोनों पॉइंट के भीतर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट डेल है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस मामले में क्या है, जीरो है ना। ये दोनों के भीतर कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है क्या? अगर ये यहाँ पर पहुंचता तो कुछ मिलता। समझ में आया? বুঝতে পেরেছো না বোঝাতে বলো। यही केस है, इन दिस केस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर ये दो नंबर पॉइंट पे पहुंचेगा, एक से सीधा दो नंबर पॉइंट पहुंच गया तो पर दो एक से दो के भीतर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल हुआ। ये ठीक है, कितना एल डिस्प्लेसमेंट हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? अगर दो नंबर पॉइंट इधर होता तो कुछ मिलता हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये तो सीधा पहुंच गया। तो दोनों के बीच ये दो और एक के बीच कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्या? नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आया? नाउ लिसन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, যেটার জন্য এত কিছু বলা। perpendicular displacement is done by the perpendicular velocity। लिख के रखो, बिकॉज किसी भी चीज का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी दिशा में इन एनी डायरेक्शन, if there are some displacement obviously there should be some velocity। without velocity, that is without any movement, no displacement can occur। yes or no? please reply। सही तो। सो देखो, अगर कोई चीज कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है और कहीं से भी रीच कर रहा है तो each and every displacement should have done due to some velocity। तो यहाँ पर देखो perpendicular displacement is done और occurred due to perpendicular direction में। perpendicular displacement मतलब क्या है, perpendicular direction में कितना displacement हुआ। तो perpendicular direction में displacement किसके लिए होगा, perpendicular direction में उसका जो velocity है। क्लियर? yes or no? so perpendicular displacement is occurred due to due to velocity in the perpendicular direction। yes or no? perpendicular displacement is occurred due to velocity in the perpendicular direction। similarly लिख लो horizontal displacement, ये हम नहीं लिख रहे, तुम लिख लो horizontal displacement is occurred due to velocity in the horizontal direction। yes or no? बोलो, please reply। all of you understand? it is very much similar with the case of projectile। तो तुमरा जगह तुम लोग तो लिखोगे, क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर्ड ड्यू टू द वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पहले इस केस को देखो, इस केस को ध्यान से देखो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। ये एक नंबर में स्टार्ट किया, तीन नंबर पॉइंट पे पहुंचा। इसका वेलोसिटी डायरेक्शन क्या था, बोट का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्टार्टिंग इस दिशा में था दीदी, और वीआर इस दिशा में है। तो इस मामले में देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है,
VB, VB is directed in the perpendicular direction. Yes or no? Please reply. देखो एक नंबर पॉइंट से तीन यहाँ पे स्टार्ट किया, तीन नंबर पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ पर डेस्टिनेशन एंडिंग ऑफ द जर्नी। तो एक से स्टार्ट करके तीन नंबर पॉइंट में पहुंचने में सपोज टाइम लगा टी सेकेंड। कितना समय लगा? टी सेकेंड। एक से स्टार्ट किया, यहाँ से इस दिशा में स्टार्ट किया, अल्टीमेटली यहाँ पर इस डायरेक्शन में पहुंचा, तो कितना समय लगा? टी सेकेंड। तो व्हेन इट विल रीच इन द थर्ड थर्ड थ्री नंबर पॉइंट, इट रिक्वायर्स द ट्रेवलिंग टाइम इज टी सेकेंड। तो इस टी सेकेंड में इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, दैट इज वीबी इन दिस केस। यस और नो? प्लीज रिप्लाई। So displacement by velocity is time, all of you know। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? एल। और इसका वेलोसिटी क्या था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? वीबी। सो इस इन दिस केस एल बाई वीबी इज इक्वल टू टी। यस और नो? रिप्लाई दो। अंडरस्टैंड? नाउ व्हेन इट रीचेस थ्री पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना है बोलो? आंसर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी किसका है? कितना है? ऑल ऑफ यू लुक एट द पिक्चर एंड गिव मी द आंसर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन दिस पिक्चर? हु इज रेस्पॉन्सिबल? वी आर। वेरी गुड। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? पकड़ लो, अगर नदी का कोई लहर ही नहीं रहता, अगर नदी एकदम स्थिर शांत रहता, तो वी आर कुछ नहीं रहता, तुम सीधा जाते, सीधा पहुंच जाते। यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस और नो? पकड़ लो, द रिवर इज एट रेस्ट, देयर इज नो मोशन इन द रिवर। तब तुम अगर सीधा जाते तो तुम सीधा ही पहुंचते। तुम यहाँ से स्टार्ट किया, वी यहाँ पर पहुंच जाते, तुम्हें यहाँ पर पहुंचना नहीं पड़ता। तुम्हारा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम ये इतना डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? नदी का भाव के लिए तुम्हारा यह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर नदी का भाव नहीं रहता तो तुम सीधा पहुंच जाते। तो इसका इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? नदी का भाव, दैट इज वी आर। सो इसके लिए जिम्मेदार है, हॉरिजॉन्टल के जिम्मेदार है कौन है? वी आर। तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई वी आर। इसके लिए भी तो तुम्हें जब यहाँ पर पहुंच रहे हो टी सेकेंड ही समय लग रहा है ना? दैट इज टी। क्लियर ऑल ऑफ यू? x by vr is equal to also t. All of you understand? This concept is very much required in solving the problems. In solving the problems. तो जब भी तुम, हाँ बोलो। হ্যাঁ সেম কেন? বলো এবার। ভেরি একদম খুবই কমন কোশ্চেন, এখানেও আগে কয়েকজন কোশ্চেन कुछ कुछ सवाल करे। तुम एक से स्टार्ट किया, तीन नंबर में पहुंचे, देखो तुम पकड़ लो, सुबह 10 बजे स्टार्ट किया, 10 बज के 20 मिनट पे तुम तीन नंबर पॉइंट पे पहुंच गया, तो कितना समय लगा बोलो? 30 मिनट। दैट इज टी इज इक्वल टू 30 मिनट। तो जब भी तुम इस तीन नंबर पे पॉइंट पे पहुंचे, आफ्टर 30 मिनट्स you have two types of displacement. Yes or no? Whenever you reach at the third point in 30 minutes, you have two types of displacement. ये दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट कितने समय में हुआ बोलो? 30 मिनट्स। वेरी गुड। तो जब भी तुम तीन नंबर पॉइंट पे पहुंचा, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एल। यस और नो? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x बाई वी आर इज इक्वल टू 30 होगा, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट l बाई वी इज इक्वल टू 30 होगा। समझ पाए अभी? क्यों? ओके।
That's why the time is same. Now see, यहाँ पर इस पिक्चर में ये जो केस था हम इस पिक्चर में समझा दिया। अभी इस मामले में क्या होगा देखो, तो यहाँ से तुम इस केस में तुम कंक्लूजन डाल सकते हो, इस केस के लिए तुम कंक्लूजन डाल सकते हो क्या होगा, देखो हम समझा रहे हैं। तो दिस इक्वेशन इज, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो इस पिक्चर में L by VB is equal to X by VR, because from these two equation you can easily write L by VB is equal to X by R, that is perpendicular displacement by perpendicular velocity, or the velocity of the boat is equal to horizontal displacement by velocity of the river. Here you can write it. ये अगर इसी टाइप का कोई न्यूमेरिकल्स आएगा तो इसके लिए ऐसे करना। अभी देखो इस मामले में क्या होगा, if you want to reach at the opposite point, you have to travel in this direction, or you have to start your journey in this direction, so that you can travel in the perpendicularly exactly opposite point. See, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L होगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अभी देखो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार कौन होगा, who is responsible for the perpendicular displacement? Obviously the velocity in the perpendicular velocity, the velocity in the direction of the, sorry, the velocity in the direction of the perpendicular, yes or no? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा वही जिम्मेदार होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। So what is the velocity in the perpendicular direction, in this case v, yes or no? vb देखो, vb का डायरेक्शन तो इधर है, vb तो अभी इस मामले में vb परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है क्या, बोलो नहीं है, vb तेरा है इस तरफ, yes or no? एकदम यस, इस मामले देखो बीबी और बीआर दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तभी तो तुम परपेंडिकुलर में जा रहा था। और इस केस में व्हाट इज द वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बीबी एंड बीआर, दैट इज v, यस और नो? So this v is responsible for crossing the river, that is the for the perpendicular displacement। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको तुम एक, हम अभी इसको इसको भी करेंगे 104 नंबर। See, now you have to calculate v। सो यहाँ पर क्या होगा, इसको एक्सटेंड करो और पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई, द पैरेललोग्राम लॉ। ये डायगोनल बराबर होगा, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड सेम होता है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड कहाँ पर गया, 114 सेम होता है। तो ये भी क्या होगा, ये जैसा भी है ये भी भी होगा, ये भी आर है तो ये भी क्या होगा, वी आर होगा, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये वी भी है ये वी आर है। तो देखो अब कैसे निकालोगा, कैन यू कैलकुलेट दिस, बोलो। देखो दिस इज परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, कैसे भी तुम कर सकते हो, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये बी क्या है, वी, वी आर तो हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ क्या है 90 डिग्री है ना, ये सब ना बोलो, हॉरिजॉन्टल के साथ तो वी 90 डिग्री है, और ये ऑपोजिट पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड सेम होता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी वी भी होगा, ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड ये भी वी भी होगा।
ये VB है तो ये भी VB है, ये VR है तो VR के साथ V 90 डिग्री में है। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अभी इस मामले में क्या होगा देखो, तो ये 90 डिग्री एक ट्रायंगल है, इसको तुम नाम दे दो, इसको क्या नाम दे सकते हो, A, B and C. This is a triangle. From triangle ABC, this angle is 90 degree. So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो VB क्या होगा, ये क्या होगा, ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेनस VB होगा, तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज VR, बेस में क्या है VR है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है V, रिजल्टेंट वेलोसिटी V स्क्वायर। सो V स्क्वायर क्या निकलेगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ये सब ना। So what will be VB, what will be V, root over of VB square minus VR square. Clear all of you? Please reply. Yes, sir. So इस मामले में पकड़ लो, यहाँ पे जाने से T टाइम लगा, एक नंबर में पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ पे T टाइम में पहुंचा, इट रीचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट एट इन अ टाइम T सेकेंड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट L हुआ, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है V, दैट इज VB स्क्वायर रूट ओवर VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो कितना समय लगा यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में, सपोज T सेकेंड समय लगा, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है L, और वेलोसिटी क्या हुआ L बाई V विल बी इक्वल्स टू T। ये सब ना बोलो, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट L और वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके लिए तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है V, सो L बाई V इज इक्वल टू टाइम होगा। तो यहाँ पर V क्या है देखो, V निकला L बाई रूट ओवर VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर इज इक्वल टू T। ये सब नो समझ में आया सबको, बोलो ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. दिगंत, रोशनी, Yes. सो दिस इज इन द केस व्हेन, तो ये कौन सा केस है ध्यान से देखो, दिस इज द केस व्हेन द बोटमैन और द स्विमर crosses the river through traveling the minimum distance। देखो अगर इस दिशा में जाएगा तो ये इसका पाथ ऑफ ट्रेवलिंग क्या है, ये हो रहा है पाथ ऑफ ट्रेवलिंग है ना, तो ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। पिछले केस में क्या हुआ, ऐसे स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे पहुंचा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था पिछले केस में, इतना डिस्टेंस ज्यादा। अब इस मामले में क्या हो रहा है देखो, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो ये सीधा पहुंचेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है छोटा सा, सही मिनिमम हो रहा है, तो दिस इज द केस when the boatman travels minimum distance। yes or no बोलो। तो whenever there are some question which requires to find out the time or traveling in crossing the river to minimum distance, तब कौन सा केस होगा, ये केस होगा। ये टेढ़ा तरफ स्टार्ट करना पड़ेगा तो ऐसे जाएगा, तो उस मामले में मिनिमम डिस्टेंस में टाइम कितना होगा, L बाई रूट ओवर VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर इज इक्वल टू T। समझ में आया सबको, दिगंत एंड ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर बोलेगा तो ऐसे करना पड़ेगा, अगर मिनिमम डिस्टेंस नहीं बोलेगा तो कौन सा रहेगा, वो वाला केस जो पहले हमने बोला था, इसके पहले नीचे जो था उसमें देखो मिनिमम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो रहा, तो उसमें अलग से निकालना पड़ रहा है, ठीक है।